तो जो लास्ट क्लास में हमने किया था उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रही हूँ. नंबर ऑफ मोल्स के मोल्स वाले न्यूमेरिकल हम लोग शेयर कर रहे हैं, और नंबर ऑफ मोल्स का एक बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है कि व्हेन यू आर वांटिंग टू फाइंड आउट द नंबर, तो आप लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कुछ भी हो सकता है, वॉट एवर इज गिवन. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हीलियम दिया है तो ये एटम है, अगर NaCl दिया है तो ये मॉलिक्यूल्स हैं, H2O दिया है ये मॉलिक्यूल्स हैं, Al3+, Na+, Cl-, ऐसा कुछ दिया हुआ है तो ये आयंस हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा? गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर. इतना क्लियर है आपको? इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? हाँ. Yes, ma'am. अच्छा, एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23. ठीक है, ये नंबर हमको याद रखना है. अभी हम न्यूमेरिकल्स करेंगे इस पे बेस्ड. ओके, अगर मुझे एसोसिएट करना है मोल्स को मास से, अब ये मास एटॉमिक मास हो सकता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एटम, या तो मोलर मास हो सकता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स, या तो फॉर्मूला मास हो सकता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट अस से आयोनिक कंपाउंड. जैसे एटॉमिक मास कब होगा? जब मैं हाइड्रोजन, क्लोरीन, सोडियम, हीलियम ये सब की बात कर रही हूँ. मोलर मास कब होगा? व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर और मे बी H2SO4, कोई भी सॉल्ट ले लो, कोई भी एसिड बेस कुछ भी ले लो. ठीक है. फॉर्मूला मास कब होगा? जब मैं NaCl, KCl इस तरह के कंपाउंड्स की बात कर रही हूँ. तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होगा, in this case when you're talking about mass, इसका फॉर्मूला होगा mass upon, mass means given mass upon, it can be atomic mass or molar mass or formula mass depending upon the numerical that you are solving. इतना समझ में आया? Is this clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now let us solve the numericals in your textbook. Okay. So I am talking about NCERT textbook, page number 44, and I am on question number 4. You might have done this earlier also, but we'll revise it quickly. So let us write the following formulae. The first one is magnesium chloride. How do you write the formulae? Crisscross method. Tell me what is the symbol of magnesium, children? Quick. Mg. Okay, it is Mg. What is its valency? Come on, who knows? Quickly. 2+. Yes, it is 2+. Symbol of chloride? Cl-. Nyasa gave the answer. Chalo, fatafat valency bolo. What is valency of chloride? Jaldi, jaldi. -1. Crisscross formula. So how do I write it? I write it as MgCl2. Clear है सबको? Yes or no? Yes. Okay. Next one is calcium oxide. देखते हैं, see there are 3 people in the meeting. देखते हैं कौन एकदम फटाफट आंसर देता है. Fastest finger first. Calcium का symbol बोलो जल्दी से. Ca. Nyasa gave the first answer. Come on, बाकी के लोग, I know everybody knows the answer. Oxygen का symbol बोलो. O. Come on, fast now. Calcium का valency. +1 is wrong answer. Calcium का valency फटाफट. 2+. Very good Diva. 2+. Oxygen का valency 2-. 2 minus. 2 minus. 2 plus and 2 minus cancel.
तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा CaO. CaO. Keep yourself unmute if possible. Turn on your video and quickly give me the answer. एकदम फटाफट फटाफट देना है. Copper nitrate. Okay. Copper symbol is Cu. Cu. Nitrate CO. symbol is NO3. NO3. NO. Nitrate का symbol क्या है? NO3. NO3. Radical. NO3 में कितने atoms हैं बता सकते हैं आप लोग? How many atoms are there in nitrate radical? 4. 4 atoms are there. Good. Okay. Copper का valency कितना है? We have to take cuprous or 2 cupric. plus. Very good question. So you have to ask me whether I am talking about cuprous or I am talking about cupric. Cuprous is copper, Roman number 1, not 2. I'm sorry. It's Roman number 1. And 1. cupric is Cu2 plus. Copper is a transition element, so it has got more than one valency. Okay. Now, Diva, the answer to your question, should we take 1 or 2? So for that, first let us write nitrate. Nitrate का valency कितना है? 1 minus. Very good. It's -1. So it would be easier to take +1. So if I take +1 -1 cancel, तो ये जो फॉर्मूला बना CuNO3, ये किसका फॉर्मूला है? ये कॉपर 1 नाइट्रेट का फॉर्मूला है. ओके, वी राइट इट प्रॉपरली. सो कॉपर 1 नाइट्रेट विल बी CuNO3. ओके, so this is copper 1 nitrate. Okay, then I can write copper 2 nitrate also. How exactly? So for that I have to rub this Roman number 1 and I have to rub this as well. So now I can take cupric. What happens if you take cupric? This becomes +2. This becomes copper 2 nitrate. अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा? क्रिस क्रॉस वैलेंसी लिखेंगे ना ऐसे. तो दिस 2 शुड बी रिटन हियर, बट बिकॉज नाइट्रेट एक रेडिकल है, आपको क्या करना पड़ेगा? Bracket. आपको Bracket. करना पड़ेगा. So Cu bracket NO3 twice is right, but if you write it like this is wrong. Sorry, I was in such a hurry to do it wrong कि मैंने यहाँ 2 ही नहीं लिखा. So let me write 2 here. So if I write 2 without a bracket, this formula is wrong. Clear है सबको? Yes, ma'am. Clear to Yes, ma'am. everybody? Let's go to the next formula. The next formula is aluminium chloride. चलो फटाफट. Aluminium का symbol A. Al. Chloride का symbol Cl. Aluminium का valency जल्दी, एकदम जल्दी. I will not write. 3 plus 3. It is 3 plus, and chloride Cl is 1 minus. very good. -1. 1 minus. फॉर्मूला क्या हो गया? जल्दी से फॉर्मूला बताओ क्या होगा? AlCl3. Very good. All of you answered the right answer at the same time. Very good. AlCl3. So that's aluminium chloride. Let us take the last one. Calcium carbonate. देखते हैं कौन जल्दी जल्दी आंसर देता है. Calcium is Ca. Carbonate is CO2. Carbonate is जल्दी बोलो. CO. It's not CO. It's CO3. CO. Carbonate is CO3. Okay, valency बोलो. Cm1 Plus. minus. Carbonate is 2 minus. CO3 2 minus. minus. तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaCO3. CaCO3. 3. क्लियर है सबको? हाँ. Oh, Yes, ma'am. question number 5 in your NCERT textbook. Okay.
Sorry, let me write it properly. Just a minute. Are these classes better now? हाँ या ना? Yes, ma'am. थोड़ी तो तारीफ Yes, करो, ma'am. मेरा भी मॉरल बूस्ट करो. Anyways, so question number 5. आपको अभी क्या बताना है? Give the names of the elements present in the following compound. तो आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है. सो द फर्स्ट वन इज क्विक लाइम. क्या होता है क्विक लाइम? Calcium oxide. Calcium oxide. वेरी गुड. कैल्शियम ऑक्साइड. कहाँ यूज करते हैं इसको? कहाँ यूज करते हैं इसको? Alkaline and crystalline solids. अल्केलाइन एंड, ओ माय गॉड, इतने बड़े बड़े वर्ड्स. नॉर्मल यूज क्या है इसका डे टू डे लाइफ में? व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज करते हैं ना. दिवाली आ रही है तो व्हाइट वॉशिंग मतलब प्लीज डोंट डू दैट अगेन. व्हाइट वॉशिंग का जो पेंट करने के लिए, दीवार को व्हाइट वॉश करने के लिए क्विक लाइम यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है CaO. कैन यू टेल मी द केमिकल नेम? केमिकल नेम बता सकते हैं आप मुझे इसका? Calcium oxide. वेरी गुड. कैल्शियम ऑक्साइड. अब मुझे बता दो इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? कौन से एलिमेंट्स? Calcium and oxygen. वेरी गुड. Calcium and oxygen. Calcium, that is Ca. Oxygen, that is O. Okay, let's take the next one. Hydrogen bromide. फॉर्मूला क्या होगा इसका? HBr. ग्रेट, परफेक्ट. HBr. और इसमें सो हाइड्रोजन इज H, ब्रोमीन इज Br. क्योंकि वो नेगेटिव रेडिकल है इसलिए इसको बोलेंगे ब्रोमाइड. ओके, अब मुझे बताओ इसमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है? Hydrogen and bromine. ओके, इसमें प्रेजेंट है हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड. नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? Bromine. ब्रोमाइन बोलेंगे. Bromine. ब्रोमीन बोलेंगे. ओके, द नेक्स्ट वन इज बेकिंग पाउडर. कहाँ यूज होता है बेकिंग पाउडर? केक्स बनाने में. और कहाँ यूज होता है बेकिंग पाउडर? ब्रेड बनाने में. और कहाँ यूज होता है? बारिश पड़ती है तो क्या खाते हैं? पकोड़े बनाने में यूज होता है, टू मेक देम क्रिस्पी. ओके, एनी आइडिया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग पाउडर? Ma'am, is it NaHCO3? NaHCO3. Excellent, Diva. It is NaHCO3. केमिकल नेम कौन बताएगा? Sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrocarbonate. हाइड्रोजन कार्बोनेट. वेरी गुड दीवा, ध्रुव, दोनों ने सही आंसर दिया. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. ओके, एलिमेंट्स कौन से हैं बता दो जल्दी से. Sodium bicarbonate. Sodium bicarbonate, carbon and oxygen. ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट उसका नेम था. सो इट हैज गॉट सोडियम, हाइड्रोजन, इट हैज गॉट कार्बन एंड इट हैज गॉट ऑक्सीजन. 4 एलिमेंट्स प्रेजेंट है. अच्छा, आप मुझे इसमें नंबर ऑफ एटम्स भी बता सकते हैं क्या काउंट करके? नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, जल्दी बताओ. 6. मैंने पूछा था नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं. दीवा गेव द फास्टेस्ट आंसर. 1, 2, 3 and 3 ऑक्सीजन, दैट मेक्स इट 6. इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एटम्स, जल्दी बताओ. 2. गुड. और इसमें कितने हैं? 2. न्यासा गेव द फास्टेस्ट आंसर. ओके, आई एम नॉट allowing you to write. I will upload the video on YouTube. बाद में pause कर करके लिख लेना if required. Okay, the last one is potassium sulfate. कौन बताएगा फॉर्मूला? पोटेशियम सल्फेट. K2SO4. K2SO4. वेरी क्विक ध्रुव, एक्सीलेंट. पोटेशियम सल्फेट K2SO4. एलिमेंट्स कौन कौन से इसमें बताओ. Potassium sulfate oxygen. पोटेशियम इज राइट. Sulfur. हाँ, पोटेशियम, sulfur and oxygen. Good try, Teer. Everything was correct except for sulfate.
नंबर ऑफ एटम्स बता दो जल्दी से. 7. That was very quick. Nyasa was expecting what would be the next question, and that is why she was ready. 7 is the right answer. 2 plus 1 plus 4 is 7. ठीक है ना? Shall we go to the next question? Yes, sir. चलो, all this seems very easy, right? ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मोलर मास कैलकुलेट करना है. मोलर मास, वेरी इजी. कैसे करेंगे? ओके, दिस मॉलिक्यूल इज इथिलीन. इथिलीन एक गैस होता है जिसको हम यूज करते हैं टू राइप द फ्रूट्स, स्पेशली बनाना. बनाना के राइपनिंग के लिए इथिलीन गैस लगता है. C2H2. 10th स्टैंडर्ड में आप प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन पढ़ेंगे, प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन इन लेबोरेटरी. ओके, फॉर्मूला याद रखेंगे C2H2. मोलर मास कैसे बनाते हैं? धाना मर्चा लेना है किसी को तो बेचने आया है. ओके, 28 grams. 28 gram इसका मोलर मास. सही. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? मोलर मास इज इक्वल टू, हु विल हेल्प मी विद द फॉर्मूला? जल्दी जल्दी बोलो. दीवा. 2 into 12 plus 2 into 1. करेक्ट. 2 into atomic mass of carbon 26. plus 2 into atomic mass of hydrogen, that is equal to 2 into 12 plus 2 into 1. तो आंसर आया, तीर्थ ने सही आंसर बताया, ध्रुव ने गलत बताया था क्या? 24 plus 2 that is 26. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा? What should be the unit? U. Grams. आप यू नहीं, ग्राम्स नहीं लिख सकते. मॉलिक्यूल्स को हम ग्राम्स में वे नहीं कर सकते, तो आप इसको यू लिख सकते हैं या AMU लिख सकते हैं. AMU बेसिकली मीन्स एटॉमिक मास यूनिट्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आप सिर्फ यू भी लिख सकते हैं. ठीक है. हाँ, ग्राम कब आएगा? जब हम मोल्स की बात करेंगे. तो इफ आई वांट टू से 1 मोल ऑफ इथिलीन, मतलब कितने ग्राम्स इथिलीन होगा उसमें? तो दैट विल बी 26 ग्राम्स. ये बात समझ में आई आप लोगों को? 1 मोल ऑफ इथिलीन Yes, ma'am. is the molar mass. Great. चलो, we'll go to the next one. Okay. Next one is sulfur molecule. सल्फर. सल्फर मॉलिक्यूल बहुत ही स्पेशल मॉलिक्यूल है. आपको पता है क्यों? क्योंकि आपने ना 3 तरह के एटम्स, मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं. कैसे कैसे? मोनो एटॉमिक, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डाई एटॉमिक, then you can go according to the number of molecules. Triatomic, yes. टेट्रा भी बोल सकते हो. देखो, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, कुछ भी बोल सकते हो जनरली. लेकिन जब 4 से ज्यादा होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको पॉली एटॉमिक बोलते हैं. ठीक है. तो मोनो का मतलब क्या होता है? 1. डाई का मतलब क्या होता है? 2. ट्राई 3. टेट्रा 4. और पॉली मतलब मोर देन 4. ठीक है. लेकिन अगर आपको आगे जाके 10th में आपको IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ना है, उसमें भी एक बार ये याद रखना, पेंटा मतलब 5. Does anybody has any idea what is hexa? I already wrote the answer, I'm sorry. So hexa is 6. अच्छा, मुझे बताओ 7 को क्या कहते हैं? Any idea? Septa. Very good. Septa. हेप्टा. और 8 को क्या कहते हैं? Octa. ऑक्टोपस, ऑक्टा. 8 इज ऑक्टा. आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा ऑक्टागोन, है ना? 9 को क्या कहते हैं? 9 को क्या कह सकते हैं? चलो मैं एक क्लू देती हूँ आपको. एक छोटी सी कार निकली थी जो किसी काम की नहीं थी. दैट कार वाज नैनो. तो 9 को कहते हैं नैनो. ओके. Generally 10 raised to -9 meter is known as nanometer, which is a very very small unit. नैनो टेक्नोलॉजी करके एक बहुत ही मॉडर्न साइंस है जो बहुत काम की चीज है. पहले इसका एक चैप्टर था 10th स्टैंडर्ड में, अब निकाल दिया है. सो नैनो इज 9. ओके. एंड डेका इज 10. ये सारी चीजें मैं आपको 10th में वापस पढ़ाऊंगी. IUPAC नॉमेनक्लेचर में काम आएगी.
फिलहाल हम बात कर रहे हैं सल्फर की. आई सेड इट्स अ वेरी स्पेशल मॉलिक्यूल. व्हाई? बिकॉज सल्फर इज पॉलीएटॉमिक. पॉलीएटॉमिक मतलब एक सल्फर मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं? 8 एटम्स हैं. एनी आइडिया कि ये 8 एटम्स किस तरह से अरेंज्ड होंगे? कुछ आइडिया है आपको? कभी देखा आपने कि सल्फर का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है? एनी आइडिया? अ लॉट ऑफ रिसर्च वेंट इन टू फाइंड आउट कि एग्जैक्टली सल्फर का मॉलिक्यूल कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. किसी ने देखा है कहीं भी किसी रेफरेंस बुक में? एनी आइडिया? एटलीस्ट से यस और नो सो दैट आई वांट आई No, ma'am. नहीं देखा है. S8 सल्फर का जो मॉलिक्यूल है वो क्राउन जैसा दिखता है, ऐसा दिखता है वो. दिस इज हाउ इट एग्जिस्ट इन नेचर. तो जहां जहां पर भी, मैं इसको थोड़ा सा अच्छा बनाती हूँ. अच्छा नहीं बनाया मैंने. लेट मी मेक अ गुड वन. ये भी आप लोगों को 10th स्टैंडर्ड में आएगा. सो आई विल मेक अ गुड वन टेकिंग फ्यू लाइंस. सो दिस इज हाउ अ सल्फर मॉलिक्यूल बी. अरे ओके नाउ फिर से लाइन थोड़ा दूर लो, अरे व्हाट डू आई नीचे डू से इफ आई. लो हाँ ओके. पर मुझे मिलानी हो तो एक्सटेंड करो. ओके. क्या बनाया था मैंने? ऐसा बनाया था. ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये क्या हो गया? आई एम ऑल्सो लर्निंग हाउ टू यूज दिस टूल्स बट इट्स फन. अरे ये क्या हो गया? ओके. अरे चलो मैं अभी यहाँ बना लेती हूँ. देन आई विल गो टू द नेक्स्ट वन. ये थोड़ा बड़ा हो गया पर कोई बात नहीं. आई नीड द नेक्स्ट वन हियर. यस ये पे आई हैव मेड सच अ नाइस सल्फर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे सल्फर एटम्स कहाँ होते हैं वो देखो. सो सल्फर एटम्स, लेट मी चूज दिस. तो ये फर्स्ट सल्फर एटम. अरे ये कैसे? ऐसे. ओके दिस इज फर्स्ट सल्फर एटम. देन दिस इज सेकेंड, थर्ड. जो भी वर्टाइसेस है ना वहां पे सल्फर होगा. 4 5 6 7 एंड 8. ओके. सो सल्फर एटम्स कहां पर हैं? सल्फर एटम्स इस तरह से अरेंज्ड है. ओके क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन ये था कि मोलर मास फाइंड करना है सल्फर का. चलो फटाफट. 256. अरे वाह, 256. that was a real time shooting. 256. Dhruv shooted the answer as fast as he could. Very good. तो कैसे आया 256 ध्रुव? 8 into 32. So it is 8 into atomic mass of sulfur, that is equal to 8 into 32, that is 256. Correct. Okay. नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. चलो बहुत सिंपल है, जल्दी जल्दी करेंगे. हाइड्रोजन क्लोराइड का कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of Ma'am? chlorine. हाँ बोलो. मैम हाइड्रोजन क्लोराइड थोड़ी है इसमें. क्या है? फॉस्फोरस मॉलिक्यूल है. Okay, मैंने एक स्किप कर दिया, सॉरी. ठीक है. द नेक्स्ट वन वाज, दैट इज द C1 वाज फॉस्फोरस. टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है. चलो बताओ कितना होगा इसका? 124. वेरी गुड. 4 into atomic mass 31. 31. 31, that is 124. Okay, just a minute. So this will be 1 into chlorine is 35.5. तो ये हो जाएगा 1 plus 35.5, that is 36.5. Okay. एक लास्ट है HNO3, वो भी कर लेते हैं. 63. Very 63. that's the correct answer. 63 is the correct answer. कैसे आया?
एटॉमिक 1 1 plus into 1 14. plus 1 into 14 एटॉमिक plus 3 into hydrogen 16. 14 and 3 into atomic mass of oxygen is 16. तो ये 60. हो गया 1 plus 14 plus 16 थ्रीजा कितने होते हैं 48 48. तो ये हो गया 15 plus 48 that is 63. ठीक है ओके अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि बाकी सारे जो है वो मोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन है ठीक है तो दैट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास जस्ट अ मिनट लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग